Chalo, look at the graph given. It's clear. This line is concerned. Which one? This line AD is concerned. It is representing the PA. CD line is concerned. It is a PB. And this line is concerned. It is a total pressures line. So obviously, straight line indicates that they are following the Raoult's law. Up see, whether B is a solvent or A is a solvent doesn't matter because both are volatile. So first one is a correct one. That is AD and BC both are following the Raoult's law because they are straight line. Plot CD is showing the Dalton's law for partial pressures. So see, this is a line CD. ये कहाँ पे है? This is a line CD. I said it is a line of a total pressure. Total pressure is equal to sum of partial pressures. So obviously it is following the partial pressure law. ये भी partial pressure Dalton's का follow कर रहा है for binary solution. Third statement, that is a EF plus EG is equal to EH. थोड़ा diagram पे ध्यान दो. Look at that. This EF PA है. Correct or not? That is a EF. देखो यहाँ पे. दूसरा बोला है what is EG? It is a PB. And so is EH. That is a P. So P is equal to PA plus PB. EH जो है that EH that is equal to total pressure भी है. So therefore yeah, it is correct. That is following the correct Raoult's law as well. So third statement is also correct. AC and BD corresponds to the vapor pressure of pure A. Check कर लो. Look at that. This is a BD, vapor pressure of a pure B. That is AC, vapor pressure of a pure A. So that line is AC and BD is also correct. But of the correct statement is that it is all the statements are correct with reference to the theory studied. Next questions. So rather than starting or rather than assessing one by one statement 1 2 3, we'll go for the third one first time. तो हम third से शुरू करेंगे. We'll take the third one. So it is a very clear कि boiling point of a solutions as per the notations is always greater than the boiling point of a solvent. वो तो ज़्यादा रहेगा. Solutions boiling point is greater than the solvent's boiling point. So obviously the third statement is a correct statement. थर्ड जो यहाँ पे जो दिया है दैट इज सॉल्यूशंस बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द करेक्ट वन. अब जाते हैं नंबर 2 पे. लेट्स गो फॉर द नंबर 2. दैट इज डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्वेंट. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि लुक एट हियर, थोड़ा डायग्राम देखेंगे. दैट इज अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू द वेपर वन, राइट. अब देखो, सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशंस हो, जब वेपर में कन्वर्ट होता है, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, इवन इफ इन द सॉल्यूशंस ओनली सॉल्वेंट पार्ट वेपराइजेस, तो सॉल्वेंट का वेपराइज होने के लिए सॉल्वेंट्स वेपराइजेशंस, द एंथैल्पी नीडेड इज अ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशंस फॉर द सॉल्वेंट ओनली, दैट इज अ सॉल्वेंट ओनली. इवन इन द सॉल्यूशंस ओनली सॉल्वेंट वेपराइजेस बिकॉज सॉल्यूट इज अ नॉन वोलेटाइल. तो जो सॉल्यूशंस का जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशंस है वो एक्चुअली तो सॉल्वेंट का ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना, बिकॉज इट इज ओनली द सॉल्वेंट दैट वेपराइजेस एंड नॉट द सॉल्यूट. सो सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट नॉट हैविंग सेपरेट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट्स solute is a non-volatile given in the questions. So therefore both are same. So that statement is also the correct statement. तो second statement भी सही statement है. अब आइए फर्स्ट स्टेटमेंट, जहाँ पे थोड़े स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है. कोई तकलीफ नहीं है, प्रोवाइडेड यू नो सम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट. देखो हम लोग लाइन बनाते हैं. सपोज दिस इज अ solvent line, so this is a solvent line, okay, and this is a solutions line. क्यों मैं ऐसा बना रहा हूँ? because solutions boiling point which is a TB is greater than the solvents boiling point, that is a TB naught. So therefore TB is lying above the TB. अब vaporizations क्या? What is vaporization? Vaporization is basically conversion, okay, to the vapor state, whether it's a solvent or solutions. But point is that during that vaporizations temperature becomes a constant. Temperature is a constant. तो समझो, ये समझो आपकी वेपर है. सपोज दिस इज अ वेपर, ओके. तो अब देखो, सॉल्वेंट के लिए टीबी नॉट जब आएगा तब वेपराइजेशन शुरू होगा, देन द वेपराइजेशन स्टार्ट्स, ओके. सपोज टू बी नॉट इज अराउंड, सो देयरफॉर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. लुक एट दैट, ये सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो मान लो कि दिस लाइन इज actually indications of the fact that this is the enthalpy involved for conversion of solvent to the vapor at a TB naught constant. तो ये आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन है. तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होगा, अगर आपको याद होगा 11 स्टैंडर्ड, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ अ वेपोराइजेशंस डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच दिस वेपोराइजेशन इज हैपनिंग. तभी देखो सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम है, सो इफ इट इज टू बी अप्लाइड फॉर द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट्स डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज दिस मच. अब समझो सॉल्यूशंस को वेपोराइज करना है,
तो उसके लिए सिर्फ आपको इतनी एंथैल्पी अप्लाई करनी है. सो दैट इज फॉर द सॉल्यूशंस. ये आपका सॉल्यूशंस के लिए एंथैल्पी चेंज देना है, करेक्ट और नॉट. तो सॉल्यूशंस एंथैल्पी चेंज इज लेस, सॉल्यूशंस एंथैल्पी चेंज इज लेस, और उसका टीबी भी ज्यादा है, उसका टीबी भी क्या है, ज्यादा है, करेक्ट और नॉट. यस करेक्ट. सो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. एंट्रोपी चेंज जो है, ये लाइन की लेंथ देखो, दिस इज द एंट्रोपी चेंज विच इज ग्रेटर देन दिस इज द एंट्रोपी चेंज. ये एंट्रोपी चेंज से ज्यादा है, करेक्ट. आपको मालूम है कि एंट्रोपी चेंज इज डिपेंडिंग ऑन कि भाई at what temperature, at what temperature you are adding or you are heating, you are supplying the heat, that is also important. तो देखो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि डेल्टा एच वेपराइजेशन के तो दोनों के लिए सेम है. वाई? बिकॉज द सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशंस. सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के लिए दोनों के लिए सेम ही है. लेकिन सॉल्वेंट के केस में जो ये जो डिनोमिनेटर टी है ये थोड़ा कम है, करेक्ट और नॉट. बिकॉज वी नो दैट कि दिस सॉल्वेंट टीबी नॉट इज लेस देन टीबी. तो दैट फॉर डेल्टा एस जो सॉल्वेंट का जो निकलेगा, एंट्रोपी चेंज जो सॉल्वेंट का निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर उसका कम है, जबकि सॉल्यूशंस का टीबी ज़्यादा है. तो डेल्टा एच वेपराइजेशन दोनों के लिए बराबर ही है अकॉर्डिंग टू दिस. सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी जो है ये सॉल्यूशंस के केस में ज़्यादा है. सो एज द डिनोमिनेटर इज हाई सो एंट्रोपी चेंज इज लेस. सो दैट मीन्स दैट गिवन डायग्राम इज ऑल्सो करेक्ट. देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे सोल्यूएंट का एंट्रोपी चेंज ज़्यादा दिखाया, हाँ तो वो सही है, और सॉल्यूशंस का कम दिखाया, करेक्ट. करेक्ट, क्योंकि सॉल्वेंट कौन सा टेम्परेचर पे है, टीबी नॉट पे है, और टीबी नॉट पे ऐड की जा रही, और ये टीबी पे है, और आपको मालूम है दैट टीबी इज ग्रेटर दैन टीबी नॉट. सो अकॉर्डिंग टू दैट एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज इक्वेशंस वी से दैट कि दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन. मतलब 1 2 3 तीनों सही है, तीनों सही है. So one more theoretical questions. Solution has a more molecular randomness than a pure solvent. कोई बड़ी बात नहीं है. Suppose these are solvent particles. Look at that. These are solvent particles. Let's take 8 solvent particles. It has a certain randomness. अब solutions बनाते. तो solutions कैसे बनाएंगे? I'll take the same number of solvent particles, but it has additional solid particles also. चलो ये solid particles है. So more the number of particles, greater the randomness. So therefore this is a solutions. ये आपका solutions है. ये हमारा सॉल्यूशंस है और ये हमारा दिस इज आवर सॉल्वेंट. तो रैंडमनेस ज़्यादा कहाँ पे है? सॉल्यूशन में रैंडमनेस ज़्यादा, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है. अरे करेक्ट और नॉट? अगर उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है और मान लो सॉल्वेंट से ज़्यादा है तो लुक एट दैट, सॉलिड की एंट्रोपी बहुत कम होती है. सो सपोज दैट इज अ सॉलिड्स एंट्रोपी. मान लो दिस इज अ सॉलिड्स एस, बराबर है, या S1 कह दो, दैट इज अ सॉलिड्स एस. अब उसके बाद में किसका नंबर आने वाला है? सॉल्वेंट की एंट्रोपी, क्योंकि रैंडमनेस उसकी थोड़ी कम है और सॉल्यूशन की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा. सो दैट इज अ सॉल्यूशंस एंट्रोपी, है कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी चेंज कहाँ पे हुआ? दिस इज द मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज. ओके, तो यहाँ पे लिखा है बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉलिड इज लार्जर देन द सॉल्वेंट एंड द सॉलिड, सॉलिड टू सॉल्वेंट, ये कम है. So this line is indicating that entropy change from solid to solution is greater than entropy change from solid to solvent. So what does it mean? It means that the first statement is a right statement. चलो ideal solutions है तो heat of fusion of solutions and solvent are similar due to the similar intermolecular forces. तो हाँ ideal solutions, that statement is also correct. ठीक है, वो भी स्टेटमेंट सही है बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सेम. सो डेल्टा एच मिक्स इज 0. दूसरा, सुगर सोल्यूशन फ्रीजेस एट अ लोअर टेम्परेचर देन द प्योर वाटर. वो तो मानते हैं कि एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट टू द वाटर ऑलवेज रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ए डेल्टा टीबी. ये आपको आना चाहिए. इट इज अ डेल्टा टीबी. सो डेल्टा टीबी इट इज इक्वल टू KB into M. मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशंस. ग्राफ देखो, जस्ट लुक एट द ग्राफ. आई मीन क्या थर्ड के केस में डेल्टा टीबी कितना होगा? दिखाया नहीं है, हम लोग ड्रॉ करके बता सकते हैं. इसे एक लाइन यहाँ पे बना लो. सो दैट इज द डेल्टा टीबी फॉर थर्ड सोल्यूशन, दिस इज द डेल्टा टीबी फॉर सेकंड सोल्यूशन, दिस इज द डेल्टा टीबी फॉर द करेक्शंस, दिस इज द डेल्टा टीबी फॉर द फर्स्ट सोल्यूशंस. अरे करेक्ट, तीन लाइन देखो, है ना? So therefore for the third solution delta TB is highest, so its concentration is also highest, followed by 2 and 1. So what is the correct options? The correct options would be this options. As the delta TB increases, the concentration also increases. But this question is not any special question as such. देखो यहाँ पे कैसे दिया है, अब सुनो.
कोई कंफ्यूज नहीं होना. लुक एट दैट. सपोज दिस इज अ सॉल्वेंट, ये समझो सॉल्वेंट है. ओके, solvent when converted to separated solvent molecules, solvent as a mass is now converted into समझो separated solvent molecules ऐसे रहने. so that is an endothermic process, it is a delta H1. ठीक है. अब देखो solutions, सॉरी सोल्यूट. अब समझो ये सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज कोई भी, उसके भी समझो मॉलिक्यूल सेपरेट कर दिए गए. सपोज इट्स पार्टिकल्स आर आल्सो सेपरेटेड. लुक एट दैट, दिस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऐसे. ओके, तो दैट एंथैल्पी इज अ डेल्टा H2. आप बोल सकते हो वो लेटाइज एंथैल्पी की बात कर रहे होंगे, शायद हो सकता है. अब क्या होगा, सॉल्यूशंस बनाए. तो सॉल्यूशंस कैसे बनाए, तो सुनो, सॉल्यूशंस ऐसे बनाएंगे. विल टेक द सेपरेटेड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये रहा, दिस आर द सेपरेटेड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, प्लस क्या उसके अंदर ऐड करेंगे, विल ऐड अ सोल्यूट पार्टिकल्स. हाँ, ऐड हो गया. सो इन दैट केस दोनों को मिक्स कर दिया, सो वी गेट अ सॉल्यूशंस. तो वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस बताया गया, दैट इज अ डेल्टा H3. अरे करेक्ट और नॉट, दैट इज अ डेल्टा H3 ऐसे बताया गया. सो दिस आर द 3 प्रोसेसेस. अब एज यूजुअल अप्लाई द थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स. कैसे अप्लाई करेंगे, जस्ट टोटल ऑफ 1 + 2 + 3. तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, समझ में आ रहा है, उसको ऐसे ही ट्रेड करेंगे. दिस लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ऑल्सो कैंसिल. सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इज अ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ठीक है ना, दैट इज अ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. मिल गया ना आपको, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू द सॉल्यूशंस. कैसे लाए आप लोग, दैट इज अ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 से लाए. सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, जहाँ पे तीनों को सम किया गया है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शंस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शंस. तो इस तरह से उसको देखना है, इजी क्वेश्चन है. वन मोर क्वेश्चंस. टोटल प्रेशर ऑफ 1 मोल X 2 मोल Y इज 240. अच्छा ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है. दैट गिवन 240 प्रेशर इज बेसिकली नथिंग, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल. ले लो उसको. तो हम लोग थियोरेटिकल राउल्स लो तो उससे देख लेते हैं. तो राउल्स लॉ से अगर टोटल प्रेशर लेके आएंगे, इफ यू गेट दे नो टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, दैट इज अ P0 है X है प्लस P0 B XP. तो ठीक है. सो 1 मोल X है तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा 1. 2 मोल Y है, सॉरी, सो टोटल इज अ 3, सो इट्स 1/3 इंटू P0 X 150 प्लस Y कितना है 2 आउट ऑफ 3 एंड इट इज अ 300 है ना, इट इज अ 300. सो दैट कम्स टू द 250 है ये तो. ठीक है, तो थियोरेटिकल ज़्यादा है लेकिन एक्सपेरिमेंटल कम है. दिस इज अ थियोरेटिकल, ये हम लोगों ने थियोरेटिकल लिया. सो देयरफॉर पी थियोरेटिकल जो है दैट इज ग्रेटर देन द पी एक्सपेरिमेंटल. तो एक्सपेरिमेंट से कम प्रेशर मिला है, एक्सपेरिमेंट से कम मतलब कम वेपर बनी है, लेस वेपर इज फॉर्म्ड. लेस वेपर इज फॉर्म, दैट मीन्स दैट इट इज अ नेगेटिव डेविएशंस व्हेन पी एक्सपेरिमेंटल or P observed is less than the P theoretical. It is a negative deviations from the Raoult's law. So right option is option A is the correct option. This is again a simple theoretical questions. ये तो है, हम जानते हैं A and B. It is showing a positive deviations मतलब more vapor मतलब more escaping tendency. That is possible only when the solute solvent interaction is weak compared to the solvent solvent solute solute. So right option is option B as per the theory. This is a fact-based questions. Maximum boiling azeotrope. So when we mix HNO3 with H2O, there is a strong hydrogen bonding happening between HNO3 and H2O, which is leading to the strong interactions between HNO3 and H2O. As a result of that, the escaping tendency of HNO3 and H2 both decreases. So less vapor is formed. So negative deviations, and hence negative deviations मतलब maximum boiling azeotrope. I mean, ठीक है, ये आप example भी याद रख लो. से दिस वन इज ऑल्सो सिमिलर टू द अर्लियर क्वेश्चंस. हम लोग एक्सपेरिमेंटली टोटल प्रेशर देख लेते हैं, सॉरी थियोरेटिकली, दैट इज एज पर द राउल्स लॉ. व्हाट इज द प्रेशर, दैट इज 1/3 बिकॉज 1/4 क्योंकि 1 मोल है 3 मोल बी है, तो टोटल मोल्स आर 4. सो 1/4 इंटू 100 प्लस 3 आउट ऑफ 4 इंटू 80, सो दैट कम्स टू द 85 है. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज अ थियोरेटिकल वन. दिस वन इज अ थियोरेटिकल, जबकि एक्सपेरिमेंटल आपको दिया है 90. लुक एट दैट, इन एक्सपेरिमेंट इट इज अ 90. सो विच इज थियोरेटिकल जो है दैट पी थियोरेटिकल इज लेस देन
that is a P theoretical is less than P experimental, मतलब एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर ज़्यादा मिला, दैट मीन्स दैट मोर वेपर इज फॉर्म, more vapor is formed, matlab it is a positive deviations, it is a case of a positive deviations. So first statement is a right statement, it is a case of a positive deviations. Okay, if the vapor pressure increases the boiling point decreases, so second statement is also correct. That is possible when escaping tendency is more. Escaping tendency is more means more vapor is formed. That is possible when AB interaction is weak. So that statement is also correct statement. So all the statements are correct statements. So it's clearly mentioned, I mean, okay, this is a azeotropic mixture से. Azeotropic mixture boils at a single constant temperature. और मैंने बताया है कि जो वेपर बनेगी उसके मोल फ्रैक्शन एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होता है. इन दिस केस इट इज़ 120 डिग्री. जो वेपर बनेगी उसके मोल फ्रैक्शन उतने ही होंगे जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शंस है. सो मोल फ्रैक्शंस डू नॉट चेंज. मतलब H2 और HCl का सेपरेशन जब भी azeotropic आया है, इट्स डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल. रिमेंबर, azeotropic mixtures distillation is not possible because it boils at a single constant temperature. The vapor produced has the same compositions as the liquid, so therefore its distillation is not possible. Next one, similar to this one, I mean, again it is an azeotropic mixtures. मतलब again C2H5OH, that is ethanol in water. Azeotropic mixture मतलब distillation is not possible. So right option is option C, neither ethanol nor water. ठीक है, दोनों क्वेश्चंस बराबर ही है. यहाँ पे भी H2HCl को सेपरेट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे भी इथेनॉल वाटर को सेपरेट किया डिस्टिलेशन से नहीं जा सकता है. व्हाई? बिकॉज दे हैव फॉर्म द एजोट्रोप. एजोट्रोप बना लिया, इसके लिए नहीं हो सकता है. नेक्स्ट वन, चलो, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स, ओके, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट क्लियरली मेंशन हायर देन, सो दैट इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है. ये कौन सा है? दैट इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग. तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ है. That means that it is a case of a negative deviation. So right option is option B is the right options. Option B is the right, because boiling point is increased of azeotropic. So boiling point increases, the vapor pressure decreases, experimental pressure कम हुआ. So it is a case of a negative deviations. Next questions please. देखो ये भी tricky questions एक बार पूछा गया. Liquid A and B having pressure so and so, but point is that they are completely immiscible. अगर immiscible है तो वो दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे नहीं. सो दे बिहेव एज लाइक दिस, कि भाई दे आर बिहेविंग एज टू इंडिविजुअल गैसेस. तो उनको जब मिक्स करेंगे तो उनका टोटल प्रेशर कितना होगा? तो दैट टोटल प्रेशर वुड बी जस्ट अ समेशन ऑफ द टू प्रेशर्स, बिकॉज दे डू नॉट मिक्स. वो तो मिक्स ही होने वाले नहीं है. सो दैट इज 100 + 200, दैट इज 300, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होंगे. वो मिक्स होंगे तो P0 एक्स से P0 B एक्स भी राउट्स लोग आएंगे ना, वो तो मिक्स होंगे ना. दे आर लुक एट इट्स क्लियरली मेंशन, दे आर बिहेविंग एज इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मतलब दो इंडिविजुअल गैसेस है तो उनका तो प्रेशर आप डायरेक्टली ऐड कर दो. सो दैट मीन्स दैट इज 100 + 200, दैट इज 300, बिकॉज दे आर immiscible.